ناظرین، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے بے روزگاری ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی کارکردگی رپورٹ کو جاری کیا، اس میں وزیر اعظم نے اپنے وزراء کی کارکردگی کو بھی ناپا، لیکن دوسری طرف عوام آج مہنگائی کا رونا روتے نظر آتے ہیں، بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کی شکایت کرتے ہیں، اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو 90 دن اور 100 دنوں کی بات کی گئی تھی، آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے۔ آج ہم راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کے پاس جائیں گے اور جڑواں شہروں کے عوام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی، ان کے وزراء کی کارکردگی، کرونا کے بعد حکومت جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، کیا وہ اس سے مطمئن ہے، اور معاشی کارکردگی خاص طور کے اوپر جس کا اس ملک کو سامنا بھی ہے، جو اکنامک چیلنج ہے، کیا عوام وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ تو آج اس جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کے پاس جائیں گے، ان سے ان کی رائے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2 سالوں میں متاثر کن کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں عوام کی۔ اچھا سر، بتائیں کہ 2 سالہ کارکردگی حکومت کی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ 2 سالہ کارکردگی میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ بینگ اوور آل جو ہے بہت اچھی بھی چیزیں ہوئی ہیں اور بیچ میں بہت بری بھی چیزیں ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ مافیا کے آگے سٹینڈ بھی لیا ہے لیکن گھٹنے بھی ٹیک دی ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اگر اوور آل چیزیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ سروے جب کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک چند اسپیسیفک شاپس پہ سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پہ چیزیں ان کو ریٹ ان کو ٹھیک ملتا ہے، لیکن اوور آل میں آپ کو ایسی شاپس پہ لے کے جا سکتا ہوں جہاں پہ ایسی چیز میں ریٹ نہیں ملتا۔ سمپل ایک ویٹ ہے، ویٹ 700 روپے کی 750 روپے کی 10 کے جی مل رہی ہے، جبکہ اخباروں میں اور ٹی وی میں آ رہا ہے کہ آپ کو 850 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے، تھیلا مل رہا ہے۔ کہاں مل رہا ہے، کس جگہ مل رہا ہے؟ وہ تو یہ تو کہتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے وہ پچھلی حکومتیں اور ان کی وجہ سے ہے، تو آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز میں کہ حکومت کا یہ موقف درست ہے؟ ایک بات جہاں پہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی موقف بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ایک دیکھیں کہ ٹھیک ہے، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے تو میں اس کے خلاف بولوں گا نہیں۔ جہاں پہ وہ غلط ہوں گے میں ان کے خلاف بولوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قرضے لیے ہیں، انہوں نے قرضے نہیں واپس دیے، ان کی وجہ سے یہاں پہ اور قرضے لینے پڑے، اس کی وجہ سے آگے مہنگائی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اس حکومت میں؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، سب چیزوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس حکومت میں تو لوگوں کے پاس صرف کپڑے ہی رہ گئے، کاروبار تباہ، معیشت تباہ، کون سی چیز تباہ نہیں ہے؟ ہمارا پرائم منسٹر صاحب جس چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ اگلے دن ڈبل ہو جاتا ہے، تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہی نظر نہیں تو آتی۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے، اب 2 سال میں بہتری کی امید کرتے ہیں؟ رکھنے کے لیے یہ 90 دن مانگ رہے تھے سر جی، 90 دن سے اور 2 سال ہو گئے نا، تو 2 سال اور لگائیں گے، 3 سال، تو ملک میں کیا بچے گا؟ کوئی چیز بچے گی؟ آپ کسی کے پاس جا کے کاروبار دیکھ لے، حالات دیکھ کے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ بجلی کے حالات دیکھے اور معاملات دیکھے، کیا چیز اس ہوں گے؟ اچھا، معیشت کی بہتری کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ بہتری کی صورتحال تو کیا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آپ حکومت کے موقف کو مانتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ پچھلی حکومتوں کا اور یہ حکومت ٹھیک کر رہی یہ ہے؟ تو 70 سال سے ہم سن کے آ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، یہ تو کہتا ہے میں آؤں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، پچھلی کا رونا روتے ہوتے 5 سال گزر جائیں گے۔ قرضہ کتنا اس نے لیا تھا، کیا پروجیکٹ بن رہے تھے، اس نے کتنا لے لیا، کیا بن گیا؟ اب آپ کس کو ووٹ دیں گے ویسے اگر موقع ملا ووٹ دینے؟ ووٹ تو چلو جو بھی ہے نارمل سی صورتحال سیاسی طور پہ چھوڑ دیں، وہ تو جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس نے آپ کس کو سمجھتے ہیں بہتر؟ پچھلے اس سے بہتر تھے کم از کم۔ مطمئن ہے حکومتی کارکردگی؟ حضرت میں تو اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہوں تو گورنمنٹ سے کیا مطمئن ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان کی جو تبدیلی کے نعرے لگائے تھے، ہم سب نے کہا چلو تبدیلی آئے گی، لیکن پتہ یہ چل گیا کہ جو بھی آتا ہے تبدیلی کوئی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے کچھ زیادہ خراب ہو گئے، باقیوں کے کچھ اچھے تھے تو اس لیے انہیں کچھ اچھا کام کر کے گئے۔ عمران کسی وزیر کی کارکردگی سے خوش ہیں آپ؟ نہیں
किसी भी वजीर बेअज़्ज़त हम इमरान खान की बात करें कि जो वज़ीर आज़म है, एक्शन लेने की बात होती है, तो आप हम उनसे मुतमईन नहीं तो वज़ीर को क्या करेंगे? वज़ीर तो आज तक कोई भी वज़ीर इस वक्त इस्लामाबाद से जाए, आप पूरे पाकिस्तान में देखो कोई वज़ीर ने कोई काम किया हो ना, तो मैं आपको अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि अलल ऐलान मेरी चैलेंज है, चाहे कोई भी हो। अल्फाज में तो वो कह देते, टीवी टॉक पे आकर के बैठ जाते हैं, रोज़ाना ये अल्फाज हम सुनते हैं कि कल ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपके सामने कराची है, सौतेली है, बलूचिस्तान है, आप उसकी हालत देखें, KPK की हालत देखें, पंजाब की हालत देखें, क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी थी वो 21 साल और पीछे चले गए। तो किसको बेहतर समझते हैं आप, कौन बेहतर है पाकिस्तान के लिए? तो हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह करे कि जमहूरियत को छोड़ दे तो वो सही रहेगा। हमें ये लगड़ा लूड़ा मार्शल्ला नहीं चाहिए, सीधी बात है। अगर मैं इस वक्त आपको नज़र आ रहा हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ, पीछे जो लोग इसको काम करने देंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर पीछे से इसको ये कांचा ताई होगा तो कोई भी जमहूरियत काम नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, ये बुजुर्ग ज़ईफ़ शख्स फुटपाथ पर बैठे चिप्स बेच रहे हैं, अपनी गुजर बसर के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि इन हालात में जबकि मईशत चैलेंजेस का सामना है मईशत को, ये अपना गुजर बसर गुजर औकात कैसे कर रहे हैं और अपने शब रोज़ कैसे गुजार रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, कैसे देख रहे हैं इस हुकूमत को और ख़ास तौर पे अब जो सूरत हाल है मईशत की, कैसे गुजर औकात हो रही है, किस तरह के मामला चल रहे हैं? मुश्किल साढ़े गुजाराया कि चीनी 100 रुपये किलो होगी, पत्ती जड़ी सी 50 रुपया लभनी सी, तो कल मैं पूछा पत्ती आध पा पत्ती और जनाब 130 रुपये मंगे ने, आधा पाए ने। गरीब का अगर आप बच्ची है हमारी जुबान अल्लाह लो की, और बचाया वो भी कोई नहीं, कारोबार नहीं, नौकरी नहीं। आसा जनाब लिया देखो 300 रुपया किराया लेना बाद ने रहने वाले हैं लोग, मोड़ कदीब तो गुजारा किया। बड़े अब जो महंगाई हो गई है उसमें आपका गुजर बसर कैसे होता है, कितनी आमदनी होती है, खर्चा कितना बढ़ गया? बशुक्र होने पे आपने बड़ी मेहनत करनी है, गुजारा नहीं वो खाया किस तरह करा, बच्चे ना जनाब भूखे पे मरने पे तो बच्चे। खान साहब ने गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया, जो पैसे देने वाला, आपको वो मिला? पैसे मिले खान साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? गवर्नमेंट ने तो क्या पैसे मिले, असें की तो कोई पैसा नहीं मिला। असें की आख्या ने आख्या जे मोबाइल आनो तो उसने बनाई तो दियो तो वो भी किसी दिते तो कोई नहीं पैसे जी। अच्छा जनाब, ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कितना खुश हैं आप, मुतमईन नज़र आते हैं जिस वक्त जो हुकूमत का जो अंदाज है या जो तर्ज हुक्मरानी है उससे खुश हैं आप? मसला ये है कि 2 साल का कलील टाइम है, इतने कम अरसे में हम एकदम से तो कोई ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये किस सब जा रही है। लेकिन जिस तरह के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे ML1 है या डैम्स हैं या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो ठीक हैं, जिसके असरात जाके कहीं अशरों बाद कौम देखेगी। तो जैसे अभी पिछली गवर्नमेंटों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो आज हम फेस कर रहे हैं, तो इनके कोई अच्छे काम जो हैं वो कुछ थोड़े आगे जाके, लेकिन जो फौरी जो इम्पैक्ट है वो महंगाई का है। आप इत्मीनान है आपको, महंगाई की वजह से भी खुश ठीक है? हमें एक उम्मीद है नहीं, खुशी महंगाई की किसको होगी, बहुत एक जो मखसूस तबका है जो गुर्बत से भी नीचे है वो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से मुतासर है। इसको हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको भी फाल करे, और जो ये कीमतों का अदम इस्तेकाम है, किसी यहाँ पे कुछ है किसी यहाँ पे कुछ है, ये भी एक इशू है। और वाकई महंगाई किसी वजीर की कारकर्दगी से आप खुश हों? बहुत सारे वज़राए जो टीवी टॉक शोज़ में आते हैं, बड़े मशहूर वजीर भी हैं, वो उनमें से किसी की कारकर्दगी से खुश नज़र आते हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वजारत पानी हो, बिजली हो, तालीम हो या प्लानिंग हो, किसी की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? सर ऐसा तो काबिल कदर कोई काम किसी ऐसे वजीर ने नहीं किया जिसकी वजह से कोई ग्राउंड के ऊपर बंदा को नजर आए कि जी कोई काम है और उसके ऊपर तारीफ। अभी फवाद चौधरी साहब ने कल कहा जी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें कहते हैं 3 सालों में हम इसको इम्पोर्ट करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल तो कोई लफ्ज़ों का फवाद चौधरी साहब की कारकर्दगी के मुतालिक क्या ख्याल है? अभी कल उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं और 2-3 सालों बाद इनको इम्पोर्ट की पोजीशन में देखते हैं, चाहे हो सकता है इसके कोई असरात आगे। फिलहाल तो सर कोई खास जो है ना किसी वजीर की भी कोई कारकर्दगी हमें नजर नहीं आती। अच्छा जी, ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत में जो 2 साल मुकम्मल किए हैं, किस तरह की तब्दीली देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? कोई मस्बत तब्दीली आई है? नहीं सर, जो पहले मतलब जो भी हुकूमत पहले आती रही है उसके बरक्स अगर देखा जाए तो ये इस गवर्नमेंट से हमें बिल्कुल भी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी हमें नील नज़र आ रही हैं। वजह क्या है? वजह क्या, किसको कसूरवार के जो सा हुक्मरान आता है उसकी हर किसी का अपना एक
हमें तो सारे झांसे दे देते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन एट द एंड हमें जो रिजल्ट नज़र आता है वो उसमें आवाम को कोई बेनिफिट नहीं होता। खान साहब से उम्मीदें थी, खान साहब से बहुत उम्मीदें थी, अब अब भी उम्मीदें हैं, अभी भी दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनके दिल में पाकिस्तान की जगह को बड़ा कर दे। नहीं तो आप नहीं समझते कि दवा के साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है? हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जो उनसे गवर्नमेंट आती है वो फिर खा जाती है, अब क्या कर सकते हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते ना, लेकिन उन्हें ख्याल करना चाहिए, हम उनके वोटर हैं, हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसे तो वो हमारे साथ ना करें ना। इस बारे में आप उनसे मुत्तफिक हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो माजी की हुकूमतों ने किया है और इस हुकूमत को वो सारा मलबा मिल गया और वो ठीक कर रहे हैं अभी? सर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी भी की हैं, जैसा कि करप्शन को उन्होंने बड़ा अच्छा फेस किया, उसके बाद उन्होंने नैब का इदारा स्ट्रॉन्ग बनाया, जिन्होंने करप्शन की थी उनको वो सही कटारे में ले के आए हैं। इन चीज़ों में तो हमने बहुत अच्छा, और लोगों से जो टैक्स की वसूली है, इमरान खान ने टैक्स वसूल करके एक बहुत अच्छा मतलब प्रोवाइडनेस की है, लेकिन हमें क्या बेनिफिट है? नाकाम वो कहाँ नजर आए? नाकाम कहाँ पे नजर आते हैं? नाकाम यहाँ पे है जहाँ पे अवाम को अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हम लोग नाकाम हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को सपोर्ट करे, ना कि अपने इदारों को, ना कि अपनी चीज़ों को, सिर्फ सरकारी इदारों को नहीं, जो माशी अब ये सारी पूरी मार्केट्स हैं, यहाँ पे आप काम की कंडीशन देख सकते हैं आपके सामने। अच्छा सर बताएं, ये 2 साल की इमरान खान साहब की कारकर्दगी, हुकूमत इस कारकर्दगी से मुतमईन है? वादे और दावे पूरे किए खान साहब ने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी दाल महंगी है, गरीब की पहुंच में कोई चीज़ नहीं आ रही, बिल बिजली के ज़्यादा आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गोश्त महंगा है, कोई चीज़ गरीब आदमी की अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे ये गोश्त किस हद तक एक आदमी की कुव्वत खरीद से अब दूर होता जा रहा है? गोश्त तो गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, बिल्कुल गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, ये तो अमीरों का शौक है, गरीब आदमी के तो पहुंच में है ही नहीं है, ईद के ईद खा लेते हैं। इसकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, ये तो समझो गरीब आदमी तो मार ही गया बिल्कुल। तो खान साहब ने बड़े वादे किए थे, आप समझते हैं कि 2 साल काफ़ी नहीं होते? और क्या तब भी आप इल्ज़ाम देते हैं क्योंकि माजी की हुकूमतों ने बड़े काम हुक्मरानी की है और इनको तो सिर्फ 2 साल अभी मिले? 2 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, बंदा 6 महीने में, इंसान तो देखे ना, जिस फील्ड में जाता है वो समझ जाता है, 2 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो अपने ही सब कुछ भर रहे हैं, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं सोच रहे, ये सब बेकार काम है। किसी वजीर की कारकर्दगी से खुश हैं? इससे पहले जो नवाज शरीफ थे वो ठीक थे, कम से कम रोड तो बनाए हैं ना, गरीबों का तो सोच रहे थे ना। बेशक उन्होंने कुछ किया है, बेईमानी की है, लेकिन गरीबों का भी सोच रहे थे। ये तो बिल्कुल गरीबों को मार रहे हैं, मुल्क को बेच के खा जाएंगे। कोई तवक्कुआत हैं बेहतरी की? आइंदा आने वाले जो 3 साल इनके हैं उसमें नौकरी, रोजगार, महंगाई में कमी, रोजगार की फराहमी, घर भी वो दे रहे हैं, उसकी कोई वादे, उसमें कोई उम्मीद रखते हैं आप? मैं तो कोई उम्मीद नहीं रखता, बाकी अल्लाह ही बेहतर करे। किसको वोट देंगे अगर मौका मिला दोबारा तो? इंशाल्लाह ताला पीपल पार्टी को देंगे वोट, वो ठीक रहे। वो ठीक रहेंगे। नेक्स्ट देखना, दूसरी पार्टी को चांस देना चाहिए। ये लोगों की राय थी जी, और जिस तरीके से ज़्यादातर लोग जो बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ना सिर्फ 2 साल की कारकर्दगी बल्कि इसके साथ साथ जो है वो रोज़गार की फराहमी और दीगर जो मामला, तर्ज हुक्मरानी और जो वादे किए गए थे, ख़ास तौर के ऊपर आवाम ज़्यादातर उनका ये कहना है कि इमरान खान की जो हुकूमत है, जो वादे किए गए थे वो वादे उस तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन उनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत, इनकी तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन भी हैं और अभी महज सिर्फ 2 साल हुए हैं। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों की राय थी। कुछ मजीद लोगों से और बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस 2 साल कारकर्दगी में वो किस हद तक मजीद मुतमईन नजर आए और आइंदा जो 3 साल इस हुकूमत के बाकी रह गए हैं वो कितने पुरुमीद नजर आते हैं कि यह हुकूमत डिलीवर कर पाएगी। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमती कारकर्दगी, महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर हम जुड़वा शहरों के अवाम से बात कर रहे हैं। कुछ मजीद अवाम से भी बात करेंगे, मार्केटों का रुख करेंगे और ना सिर्फ अवाम, ताजिर से बात करेंगे कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी को और हुकूमती इक़दामात को किस तरह से देख रहे हैं।
अच्छा सर बताएं ये कि इस हुकूमत ने 2 साल भी मुकम्मल कर लिए, महंगाई इनकी कारकर्दगी किस हद तक इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नजर आ रही है? तो आपको पता है ना, चीनी क्या हिसाब जा रहा है, आटा क्या हिसाब जा रहा है, महंगाई तो उसी तरह, महंगाई तो 3 गुना ज़्यादा हो गई। ये देखें ना आप, 3 गुना ज़्यादा। चीनी 110 रुपये बिक रही है। खुदा का खौफ करें यार, जुल्म हो रहा है, ये तो गरीबों पे जुल्म हो रहा है। कहाँ से होगा ये सिस्टम? तो इसीलिए ना महंगाई तो उसी तरह है। लेकिन हुकूमत कहती है कि हमारा कसूर नहीं, जो माजी की हुकूमतें करके गई हैं हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप इसी तरह कहते हैं, ये भी करके चले जाएंगे, हम किसको कहेंगे? ये भी करके चले जाएंगे तो हम किसको कहेंगे भाई? इमरान खान की बात नहीं है ये, सब के उनके काबीना को देख लें। अब चीनी वाले तो चले गए ना, कौन लाएगा उन्हें? कोई भी नहीं लाता है। ये सब गरीबों के लिए यही हिस्सा। किसी वजीर की, इस हुकूमत में किसी वजीर की कारकर्दगी से आप खुश हैं? मैं तो किसी से खुश नहीं हूँ, किसी से भी खुश नहीं। ये सारे इसी तरह ही हैं। सब आते हैं और अपना खांचा लगा के निकल जाते हैं। वज़ारत माहौलियात की कारकर्दगी पहले नंबर पर रही है, तो आपको माहौलियात के हवाले से कोई काम होता नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाई साहब, अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा। 2 साल हो गए ना इन्हें, अभी और 3 साल रह गए, देख लेते हैं। कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरह होंगे, ये भी निकल जाएंगे, ये कहेंगे बस हो गया काम। नहीं होता ये। अब देखिए महंगाई इतनी हो गई है, क्या करेंगे? किराए इतने हैं, अखराजात इतने हैं। अखराजात तो कम नहीं हुए ना, वो तो ज़्यादा हो गए ना। अब ये भी तो देखें ना आप, तो ये इसमें नहीं चलेगा इस तरह। अब इनको चाहिए कोई इनको देना, और सिस्टम उसी तरह चल रहा है इन लोगों का। तब्दीली देखी आपने कोई किसी किस्म की? कौन सी तब्दीली आ गई मुझे बताएं ना। ये अच्छी तब्दीली है यार। कराची का बेड़ा गर्क हो गया, डूब रहा है कराची, मर रहे हैं लोग वहाँ पे। क्या तब्दीली? ये तब्दीली है? नथिंग यार, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब अपने अपने चक्कर में भाई। जो आता है 5 साल लगा के निकल जाता है। ये उन्होंने किया, वो आ जाएंगे, ये कहेंगे उन्होंने वो करके गए। तो इसी तरह ये सिस्टम तो चल रहा है अभी तक, कुछ नहीं होगा। चलो अम्मा ये बताएं कि ये आप क्यों बेच रही हो? आपका तो इस वक्त उम्र है, वो घर पे आराम करने वाली है, तो आप ये यहाँ पे आके मार्केट में फुटपाथ पे ये बेच रही हैं आप? जी मेरा कोई नहीं करने वाला नहीं जी, मैं बहुत मजबूर हाँ। जंगा ते चोट लगी, वो भी कोई नहीं वाले, ते इतनी हथा पैर आनी हाँ, कोई कमाने वाला कोई नहीं। मैं किसी का मंगनी नहीं ना आखनी, चुप करके बैठी रहनी है, सिर आटे न बन बैठना। कोई घर में कोई कितने लोग हैं आपके? असी लोग हाँ 4। मैं तो मैं मियाँ कमाने वाले हाँ, वो भी पापड़ लाना, ते मैं भी, ते उसने भी नजर कोई नहीं, तो मैं भी मजबूर हाँ। कितना कमा लेती है अम्मा दिन में? वो जी दिन ने के कमा लेनी है, मैं किचन कार काम करनी है, ते मेरे ना उन मदद करने। ये तो के बचना माँ ना कितना कम पापड़ बेच के कितनी आमदनी हो जाती है? बस कदे 400, कदे 500, कदे ज्यादा, कदे थोड़ी। तो रोज के 400-500 में आटा, चीनी, दाल, पत्ती, दूध, घर का सामान आ जाता है? कदों आ जाता जी, मैं किचन कार काम करनी है तो उन मदद करने जी। अगे मैं किचन कार बर्तन धोनी हाँ, तो मैं सौदा उन लोग के देने। बिजली न बिल, पानी न बिल, गमी शादी के तो पूरी होनी। मैनू तो उन लोग मदद करने जिन्होंने कार काम करनी है, ता मैं नहीं गुजर होनी। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, असी बहु औखे हाँ। तो हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? इमरान खान से कोई खुश हैं? कोई तवक्कुआत पूरी हुई हैं? हाँ जी, एक बारी 12,000 रुपया देता ने, ये रौला गौला बना था, ते और कोई भी नहीं कोई मदद की थी ने। महंगाई पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा हो गई है? अब ज्यादा हो गई। किलो चीनी 100 रुपए किलो देने। असी 4 बंदे हाँ, 2 टाइम चाह बनावा, 3 टाइम ते चीनी या कुछ। लाला कैसे देख रहे हैं 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी और बाकी मामला, तर्ज हुक्मरानी? मुतमईन हैं आप कुछ इमरान खान की हुकूमत से? जी मैं बहुत मुतमईन हूँ इससे, सबसे ज़्यादा मैं ही मुतमईन हूँ जी बिल्कुल। क्योंकि मुल्क के पहले से हालात ही ऐसे थे कि ये सारा कुछ इन्होंने करना ही था। क्योंकि उन्होंने पहले इलेक्शन जब वो जीते हैं, उन्होंने सबसे पहला अपने खिताब में कहा है कि भाई सब कुछ होगा, मुश्किल टाइम आएगा, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले हुक्मरानों ने मुल्क का हालात ही ऐसे किए कि वो। अच्छा, जो महंगाई इस वक्त है वो ठीक आप समझते हैं कि इस वक्त ये महंगाई जो है वो हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई का तो हर बंदा कह रहा है कि महंगाई है महंगाई है,
पर ये तो सोचना चाहिए कि यार ये हमारा मुल्क पहले इतना गरीब क्यों हुआ है, वो लोग वो जो पहले हुक्मरान थे वो इतने अमीर क्यों हुए, उसके जो है ना उसका वजह कोई नहीं पूछ रहे। किस वजीर की कारकर्दगी से ज़्यादा खुश हैं? सर मैं तो पूरा हुकूमत से ही मुतमईन हूँ। काम ठीक कर रही है हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इसको टाइम देना चाहिए। ये टाइम जो है ना इंशाल्लाह ये अभी मजीद भी है और आगे भी इंशाल्लाह यही होगा। अच्छा जी, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? मुतमईन नज़र आते हैं इमरान खान की 2 साल हुकूमत से? बिल्कुल मुतमईन नज़र आते हैं। असल में उनकी इस वक्त जो जितनी भी हर मुहाज पे देखा जाए तो उनकी मुखालफत बहुत हो रही है, या पोजीशन कह लो या जो भी कह लो। हमारे जो ताजर ब्रदर्स हैं ना, ये लोग तो बिल्कुल ही उसको फेल करने के चक्कर में कि किसी तरह भी ये बंदा यहाँ ना रहे, क्योंकि उनकी कई चीज़ों में रुकावटें पैदा हो रही हैं, कई उनके मफादात में उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन आमतौर पे तासुर ये मिल रहा है कि चूँकि महंगाई ज़्यादा है, मईशत मुश्किलात का सामना है, इसलिए तमाम लोगों के लिए मुश्किल है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। खान साहब की हुकूमत की नाकामी नज़र आती है इसमें? यार एक 40 साल का बंदा बैठा हुआ चला जाए, वो कल आगे 2 साल का हिसाब ले। पहले तो ये बताए ना कि 40 साल कितने हैं और 2 साल कितने हैं। 2 साल में वो क्या करेगा? पहले तो उनका बिगाड़ सही करेगा। कौन रुकावट डाल रहा है? ये अब नॉमिनेट तो किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि सामने आके कोई भी नहीं कर रहा है, दर पर्दा कर रहे हैं, पीछे छुप के कर रहे हैं। बहरहाल यही नज़र आ रहा है कि कराया जा रहा है। और उम्मीद है खान साहब की हुकूमत? इंशाल्लाह पर उम्मीद है, और इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊं कि अगले 5 साल भी नहीं कहीं हैं। ये लोग जितना भी कर लें, पर ये लोग नहीं, ये अगर साल एक ये गुजार गए और तो ये इंशाल्लाह इनको खुद समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कैसे देखते हैं वैसे 2 साल जो इमरान खान की हुकूमत के हैं, जो दावे किए थे, वादे किए थे, आप समझते हैं ये हुकूमत उन पर पूरा उतर रही है? नहीं, अभी तक तो उस हिसाब से देखें तो जो दावे किए थे उनकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत डाउन है, और दूसरा कि जो इन्होंने डिलीवर करना था अगर आप उसको ग्रेडिंग करें तो ये मनफी में जा रहे हैं। क्योंकि अब मैं एक दुकानदार हूँ, जो रेट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल उनकी कोई कंट्रोल नहीं है। आटे की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है, चीनी की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अब चीनी का ये है कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि 70 रुपये रिटेल करें, मगर जब मंडी में ही 97, 98 मिल रही है तो ला के 100 ही बेचनी है। इसी तरह के जो आटा है सरकारी रेट वाला वो तो खाने के काबिल नहीं है। जो अच्छा वाला आटा है वो आपको 1200 का मिल रहा है, जो खाने के काबिल है। सरकारी आटा देते हैं, उसकी कंप्लेन लोग लेके वापस आ जाते हैं, उसकी वापसी नहीं होती। तो इस तरह और भी जो चीज़ें, दालें की कीमतें कहाँ पे 2 साल पहले थी आज हैं। आपको घबराहट है अभी कोई? घबराहट तो ठीक, हालात को जब देख के तो ज़ाहिरी बात है, घबराहट तो ये आला दर्जे की घबराहट है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। अब इसके बारे में अब क्या कहें? अब आप जिस पब्लिक को, जिस भी बंदे को पूछेंगे उसने तो घबराना ही है। खान साहब के कहने से, अब खान साहब तो कहते थे बिल जला दो, फलाना कर दो, तो लोगों ने नहीं जलाई। अब तो खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, मगर लोगों ने तो घबराना है। अच्छा जी, गवर्नमेंट की 2 साल कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? कुछ मुतमईन है आप खान साहब पे दावों से, वादों से? हम 100% मुतमिन हैं और अच्छी हुकूमत जा रही है और मुल्क के लिए ये अच्छा सोच रहा है। ऐसा आदमी कभी ज़िंदगी में हमें नहीं मिलेगा। ये नवाज शरीफ और जरदारी ये चोर आदमी हैं, उन्होंने मुल्क लूटे हैं और मुल्क लूट कर बाहर जा रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। हमें ये बहुत अच्छा आदमी लग रहा है इमरान खान। तो महंगाई के बारे में कहा जा रहा है कि आटा, चीनी, दालें सब बड़ी महंगी हो गई हैं। करप्शन ख़त्म होगी, मुल्क ठीक होगा। तुर्की में भी, अपना मलेशिया में भी, चीन में भी ऐसा था, फिर ठीक हो गया। करप्शन ख़त्म होने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमती कारकर्दगी, महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर हम जुड़वा शहरों के अवाम से बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी है और अब तक की जो तर्ज हुक्मरानी है उससे आप मुतमईन हैं, खुश हैं जो दावे और वादे इमरान खान साहब ने किए थे? इन्होंने जो अवाम के साथ वादे किए तो एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। इनको, अवाम को और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने इस तरह पीस के रख दिया जैसे गन्ने की मशीन गन्ना पीसती है, इस तरह इन्होंने अवाम को पीस के रख दिया और पूरे पाकिस्तान को भी पीस के रख दिया। और एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो हम खुदा के लिए हम हाथ जोड़ के इनको ये सवाल करते हैं,
یہ آپ سے بس کی بات نہیں ہے پاکستان چلانا، اور آپ مدینہ کی ریاست نام لائیں، انڈیا کی ریاست نام لائیں، یورپ کی ریاست نام لائیں، آپ اپنے گھر کو لوٹیں اور چلے جائیں، ہماری جان چھوڑیں، ہم غریب بچ جائیں۔ لیکن بابا یہ کہتے ہیں کہ جو ماضی میں جو حکومتیں کرپشن کر گئے ہیں یہ سب اس کا نتیجہ ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا، مشکل وقت کو برداشت کرنا ہوگا۔ کیسے برداشت کریں گے، کیسے صحیح کریں گے جب عوام ختم ہو جائے گی؟ کوئی کورونا سے ختم ہو گئے، کوئی ہارٹ اٹیک سے ختم ہوئیں گے، کوئی خودکشی کر کے ختم ہو جائیں گے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ساری مشکل حالات ضرور ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ گھبرائیں گے تو کیسے نہیں گھبرائیں گے؟ گھبرائیں گے کیسے نہیں؟ میں خود کہہ رہا ہوں میری 15,000 روپے تنخواہ ہے، میرے 5 آدمی کھانے والے ہیں، تو میں خودکشی کروں؟ میں کیا کروں؟ کس کو ووٹ دیں گے؟ دوبارہ موقع ملے گا ووٹ دینے کا تو کس کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ شیر کو دوں گا، زندگی رہی تو شیر کو دوں گا، مروں گا تو دعا دوں گا، ان کو نہیں دوں گا، میرے باپ کی توبہ۔ اچھا جی بتائیں، یہ اس حکومت کی، عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ، کاروباری حساب سے، روزگار کے حساب سے، مہنگائی کے حوالے سے؟ نہیں جی، بالکل مطمئن نہیں، بالکل جو کاروبار 0% کاروبار رہی ہے، بالکل ختم ہو گیا، جو تھا آٹا، چینی، فروٹ وغیرہ سب کچھ مہنگا، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ تو اس کا ذمہ دار آپ عمران خان کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں یا اس کی ذمہ داری جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں اس پر ڈالتے ہیں؟ نہیں، عمران خان پہ ہی حکومت ہے، اس کی حکومت میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، آج تک اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وعدے کتنے نظر آئے آپ کو جو وعدے کیے تھے؟ کوئی بھی نہیں، 0% رہے۔ تبدیلی ہاں صرف مہنگائی میں بہت تبدیلی آئی ہے، مہنگائی حد سے زیادہ مہنگائی تبدیلی نظر آ رہی ہے مہنگائی کی۔ لیکن آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو آپ کو گھبراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے؟ اب اوپر وزن ڈال دے گا اور کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو بات غلط ہے نا، گھبراہٹ تو ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اتنی مہنگائی میں نیچے دبائی جا رہا اور بولا گھبرانا نہیں۔ غریب بندہ تو گھبرا کے مر ہی گیا، کہہ رہا تھا غربت مٹائیں گے، لیکن غریب مٹا دیے، صرف امیر کے لیے کاروبار رہ گیا، غریب کا نام و نشان ختم ہو گیا، بالکل۔ اچھا جناب یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ اب تک جو عمران خان نے اقدامات اٹھائے وہ خوش آئند ہیں ملک کے لیے؟ جی بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے کام کیے ہیں انہوں نے، ان کو ملک کی اس حالت میں ملا تھا کہ اس کو اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس کو سیٹ کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا، اور ہر چیز تو ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ بہتری چاہتے ہیں، ان کی سوچ مخلص ہیں پاکستان کے لیے، تو اس لیے امید ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو لوگ بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں، مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے عوام کو؟ دیکھیں جی، جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا اور اگر آپ کا آپریشن بتا دے ڈاکٹر اور آپ آپریشن کرنے لگیں تو پھر تو تکلیف تو ہوگی۔ میں آپ کو پیناڈول دے دوں کہ یار بھائی اسی سے گزارا کر لیں، وقتی طور پہ تو آرام ہو جائے گا، اگر مسئلے کا پکا حل کرنا ہے تو پھر تو چیخیں نکلیں گی۔ تو وہی ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں کو سیٹ کر رہے ہیں جو پچھلے 50 سال سے نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے آپ کو پورے ہوتے نظر آئے ان 2 سالوں میں؟ نہیں مجھے تو نظر نہیں آیا، کیونکہ اس نے تو کچھ کم نہیں کیا نا، مزدور لوگ جو ہے اس کا کام نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بے روزگاری ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو مہنگائی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اس کا تو ابھی تک یہ 2 سال تو مکمل ہو گیا، تو کچھ کارکردگی اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ماضی میں حکومتوں نے جو غلط کام کیے، جو کرپشن کی لوٹ مار کی، اس کا ہمیں جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو ہمیں جو ہے مشکل حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے اپنی حکومت سے؟ نہیں، شکوہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جو ہے نا تھوڑا سا مہنگائی اس نے بہت زیادہ کیا، پیٹرول جو ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے، تو مثلا غریب لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ یہ ایک صاحب ہیں جی جو بل لے کے گھوم رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ آج کل ہر بندہ، ہر شخص جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اوپر، گیس کے بلوں کے اوپر، پیٹرول کے مہنگے ہونے کے اوپر، اشیاء خورنوش کی مہنگے ہونے کے اوپر جو وہ شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بل آپ کیوں لے کے گھوم رہے ہیں جناب؟ سر مجھے انہوں نے پلنٹی ڈالی ہے کہ آپ نے 720 یونٹ آپ نے چوری کی ہے، میں نے کہا پورے مہینے پورے سال کا ریکارڈ دیا ان کو کہ میرا بل کوئی بقایا جات نہیں ہے، انہوں نے میٹر اتارا 12 مہینے کا، رزلٹ دے رہی ہے کل۔ کتنا بل ڈال دیا آپ؟ 21,000 روپے کچھ انہوں نے ڈالا ہے میرے پہ پلنٹی پہ۔ تو آپ کی کتنی آمدنی ہے؟ میری آمدنی ہے 500 روپے روز کا۔
होटल पे मैं काम करता हूँ, इतने में किधर से ला के इनको दूँ 21,000। ये आपके घर का मीटर है? जी ये मेरे घर का मीटर है। तो चोरी का इल्जाम डाल दिया? ये चोरी का इल्ज़ाम डाला है इन्होंने कि आपने ये चोरी की है। ये आपके सामने है। मेरे ये मसला कोई हल हुआ आपका? कोई मसला हल नहीं हुआ, बस यही कहते हैं कि 3 किस्तें करा लो। मैं क्या मैं किधर से दूँ आपको 3 किस्तें? मेरी आमदन तो 15,000 रुपया नहीं बनती महीने की, तो आपको 21,000 रुपये में किधर से दूँ? ये कह रहे हैं, एक ही कह रहे हैं बस जमा कराओ, तीन किस्तों में ये जमा कराओ। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी और इस हुकूमत के इक़दामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई मुतमईन है, कोई सुनवाई है किसी जगह पे? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ भूख ही नज़र आ रही है। 6 महीने पहले कोरोना के हमें उसने मारा है, 60,000 रुपये उसके मकरूज हैं हम उधर दुकानदारों के। अभी 21,000 रुपये की इन्हें पेनल्टी और डाल दी है। किधर से लाएँ? हम डाके डालेंगे या मीटर की चोरी करें? बाबा, इस हुकूमत से खुश हैं जो इकदामात उठाए अभी हुकूमत ने? कारकर्दगी से मुतमईन है इमरान खान की हुकूमत से? देखें, इमरान खान खुद तो अच्छा बंदा है, उसके आगे जो नुमाइंदे हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो जो ऑर्डर करता है वो ऑर्डर नहीं चलता है। हमने इस हुकूमत को वोट दिया है, हमारे सब घर वालों ने वोट दिया, मरी के लोगों ने वोट दिया, पिंडी के लोगों ने वोट दिया, पठानों ने वोट दिया। अभी लोग जो हैं बड़े बड़े लोग खुदकशी कर रहे हैं। एक गरीब बंदे की 15,000 रुपये तनख्वाह है, वो क्या करेगा? खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुझे आप बताएं, हमारा 500 रुपया दिहाड़ है, 15,000 रुपये बिजली का बिल आता है, हम कहाँ से देंगे? ये इमरान साहब को सोचना चाहिए। लेकिन बाबा, वो तो इमरान खान साहब कहते थे कि अगर लीडर अच्छा हो तो नीचे वाले खुद काम करेंगे। तो इमरान खान तो आप कह रहे हैं ठीक है, फिर नीचे वाले क्यों नहीं काम कर रहे? ये जो इमरान साहब का काम है, उनको डंडा दिखाए ना। ये जो वज़ीर आज़म जो होता है 2 वाली की ताकत रखता है, आपको पता है? हम लोग ने वोट दिया, हम लोग तो खुदकशी करेंगे, सड़कों में मरेंगे, हमारा क्या जरूरत है जिंदगी का जब हमें एक चीज़ अच्छी तरह से नहीं मिल रही है? तो 2 साल ही तो हुआ है अभी इनकी हुकूमत को, 2 साल में तो कोई कुछ नहीं होता। हज़रत उमर फारूक का नाम ये लेते थे कि हमें हज़रत उमर फारूक का निज़ाम चलाएंगे। ये हज़रत उमर फारूक का निज़ाम है? एक आटे की बोरी 1450 रुपए की है, गरीब कहाँ से खाएगा? वो तो रियासत मदीना बना रहे हैं, पनाह गाहें बनाई हैं, लंगर का निज़ाम बनाया है, तो ये अच्छे इक़दामात नहीं है? ये अपारे में देखे लंगर कहाँ है? अपारे में लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकशियाँ करेंगे। देखो थोड़े दिनों के बाद देखो ना, तो अगर 15,000 रुपये तनख्वाह, 25-30,000 रुपये किसी गरीब की तनख्वाह होगी, वो खुदकशी नहीं करेगा। बिजली का बिल देगा, बच्चों का खर्चा निकालेगा, मैडम का खर्चा निकालेगा। मैडम का 5,000 रुपये का महीना खर्चा है आजकल का, पाउडर सुर्खी का। खाना कहाँ से हम लोग खाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी के ऊपर जुड़वां शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जहां कुछ लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो वादे किए वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम नजर आए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना था कि 2 सालों में कारकर्दगी का हिसाब मांगना कोई ठीक नहीं है। माजी की हुकूमतें जो कुछ कर गईं उसकी वजह से सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं और आगे मजीद आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान पाकिस्तान की किस्मत या तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करेंगे। आवाम का यही रद्द अमल है, लेकिन उसके साथ साथ आटा, चीनी, महंगाई, बेरोजगारी से सताए आवाम ये भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए, आवाम के मसाइल हल करना चाहिए और ख़ास तौर के ऊपर अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनको नीचे लाने में हुकूमत को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।